Good morning, all of you. Myself, Rupal Mahajan. Subject English. You know, student, there are various type of poem like imaginary poem, funny poem, and inspirational poem. In this way, today we will learn the poem Don't Give Up. The theme of the poem is that if you do any work, then you don't success in that work. At that time you don't disappoint, and you have to do hard work and you get a success. यानी कि यानी कि कोई भी चीज़ या कोई भी काम करते समय हमें हार नहीं माननी चाहिए, और हमें कोई भी परेशानी आए तभी भी हमें पीछे नहीं हटना चाहिए. सो this poem is written by Phoebe Carey. In this poem, there are 4 stanzas. So, give the information of Phoebe Carey. Phoebe Carey was an American poet and the younger sister of poet Alice Carey. The sister co-published poem in 1849 and then each want to publish volume of their own. After their death in 1871, joined the anthologies of the sister. Unpublished poems were also compiled. She was born 4 September 1824 in United States of America. Died 31 July 1871. Nationality American. The place of burial United States of America. Sibling is Alice Carey. So now we will see the poem Don't Give Up. Now I will read all stanzas. If you have tried to have not own, never stop for crying. All that's great and good is done just by patient trying. Second stanza. Though the young bird in a flying fall, still their wings grow stronger, and the next time they can keep a little longer. Through the sturdy oak has known many a blast that bowed to her. She has risen again and grown loftier and prouder. If by easy work you beat, who the more will prize you? Gaining victory from defeat, that's the test that tries you. So, we will see the first stanza. In the first stanza, if you have tried, have not own. Own means जीतना, and crying यानी कि रोना. नेक्स्ट वर्ड देर इज अ पेशेंस. पेशेंस यानी संयम रखना. तो फर्स्ट स्टैंजा में हमें बताया गया है, द पोएट इनकरेज अस not to give up. She says that if we have tried to achieve something but not success, you should not stop to cry. All great and good things have been done just by keeping trying and patience. Means कोई भी चीज़ के लिए हमें प्रयास करना महत्वपूर्ण है. उसमें आपको जीत मिले ना मिले तभी भी हमें कभी भी रोना नहीं चाहिए. दुनिया में जो भी चीज़ है वो पूरा करने के लिए हमें संयम और प्रयास, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है. नाउ वी विल सी द सेकंड स्टैंजा. दो द यंग बर्ड इन फ्लाइंग फॉल, स्टिल देयर विंग्स ग्रो स्ट्रॉन्गर, एंड द नेक्स्ट टाइम दे कैन कीप अप अ लिटल लॉन्गर. नाउ वी विल सी द डिफिकल्ट वर्ड्स. बर्ड्स यानी पंछी, फ्लाइंग यानी उड़ना, विंग्स यानी उनके पर, पंख, स्ट्रॉन्ग यानी बोल्ड. तो सेकेंड स्टैंजा में बताया है, द पोएट फर्स्ट गिव्स अस एन एग्जाम्पल ऑफ यंग बर्ड. द बर्ड फॉल व्हेन दे आर लर्निंग टू फ्लाई, बट देयर विंग्स ग्रो स्ट्रॉन्गर, एंड द नेक्स्ट टाइम दे ट्राई दे कीप अप अ लिटल लॉन्गर देन बिफोर. मीन्स इसका मतलब है जो भी पंछी है वो आकाश में उड़ता है और उसे उड़ने के लिए पंखों की
ज़रूरत होती है, पर उसके साथ साथ वो पंख कैसे होने चाहिए? स्ट्रॉन्गर, यानी मजबूत होने चाहिए। वो मजबूत नहीं हुए तो वो ऊपर उड़ेगा, फिर नीचे गिरेगा। तो इसके लिए उसके पंख मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। उसी तरह हमारे जीवन में कोई कितनी भी कठिनाई आए तभी भी हमें क्या होना चाहिए? मजबूत होना चाहिए। उसी तरह ये पंछी को उड़ने के लिए उसके पंखों की ज़रूरत है और वो पंखों मजबूत होना बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे कि चींटी का एग्जाम्पल है, चींटी बार बार दीवार पे चढ़ती है, गिरती है, तभी भी वो अपना प्रयास नहीं छोड़ती है और फिर अपनी मंजिल पे पहुंच जाती है। उसी तरह हमें आगे बढ़ना है। नाउ वी विल सी द थर्ड स्टैंजा। Though the sturdy oak has known many a blast that bow her, she has risen again and grown loftier and prouder. Oak, difficult words. Oak, name of the tree. तो इधर बताया गया है, ब्लास्ट मीन्स सर्वाइव मेनी ब्लोज ऑफ स्टॉर्म विंड्स। तो उसमें बताया गया है थर्ड स्टैंजा में, द स्ट्रॉन्ग ओक हैज़ बीन bent by many stormy winds, but has risen again, grown taller, stronger and prouder. तो इसका मीनिंग है कि जो भी मजबूत पेड़ होता है, ओक नाम का जो ट्री है, वो कितना भी मजबूत हो, पर जब आंधी या तूफान आता है तो उनके साथ क्या करना पड़ता है? सामना करना पड़ता है। आंधी तूफान से जो पेड़ है वो कभी कभार गिर जाते हैं या झुक जाते हैं। आंधी तूफान थमने के बाद फिर उनको क्या होना पड़ता है? अपनी मेहनत से खड़ा होना पड़ता है। उसी तरह हमारे जीवन में कितने भी तूफान आए, आंधी आए, कठिनाई आए, तभी भी हमें हिम्मत नहीं हारनी है और अपने बल पर हमें खड़ा होना है। नाउ वी विल सी द लास्ट स्टैंजा। इफ बाय द इजी वर्क यू बिट, who the more will prize you, gaining victory from defeat, that's the taste that tries you. बीट यानी कि टू विन, विक्ट्री यानी जीतना, डिफीट यानी पराजित होना। सो द पोएट वार्न अस that no one will value us if we win when we do something that is easy. The taste that show our strength is the one where we don't give up but the gain victory after defeat. Give up means loss, heart, stop trying. प्रयास करना छोड़ देना। तो फोर्थ स्टैंजा में हमें बताया गया है कि सीधा साधा कोई भी काम हो, इजी काम हम जल्दी से कर लेते हैं और उससे हमें कुछ प्राइज़ भी मिला तो भी उससे हमारी वैल्यू नहीं बढ़ेगी। बट हमने कोई भी डिफ़िकल्ट काम किया, जो इम्पॉसिबल वर्क है वो हमने किया, तो कोई भी हमें पूछ सकता है। यानी कि डिफ़िकल्ट हार कर जो जीतता है वही एक कामयाब इंसान होता है। और इसीलिए हमें असली परीक्षा कब होती है? जो इम्पॉसिबल काम जो हम कर सकते हैं तभी हमारी असली परीक्षा होती है और उसमें हम क्या है? जीतते हैं। Now we will see the difficult words from the poem. First, little, small, strong, bold, victory, win, loftier, taller, and stronger, give up, loss, hurt, and stop time. Now we will see the rhyming words from the poem. Own, done, crying, trying, stronger, longer, known, grown, beat, defeat. So today we will learn the poem Don't Give Up. The theme of the poem is that if you work hard, then you become a success of your life. You have to achieve your goal. यानी कि कोई भी काम करते वक्त हमें हारना नहीं है, तूफानों से डरना नहीं है, हमें आगे जाना है और हमें क्या करना है? जीतना है।
Thank you, all of you.